Hello dear student, I am Varun Nishad from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and in this video we will talk about some ions, some simple, common, simple and polyatomic ions, and through which know them and then after practice to write the exact chemical formula of different compound. पहले हम different types के ions के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन वी हैव हाउ टू नो एंड हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड. लेट्स सी. सो व्हाट इज द आयंस? यू नो, इन केस ऑफ मेटल when they release outermost electron or free electrons, they carry positive charge. And if you know already about the non-metals or they receive electrons and they carry negative charge. So we start from valency of 1. Valency of 1. किनकी valency 1 होती है? So valency किसकी 1 होती है? सोडियम है पहली. सोडियम का सिंबल कितना क्या होता है? Na+. दूसरा होता है, सो द नेक्स्ट इज पोटेशियम which is also carry positive 1 molecular charge. This right here symbol of potassium is P+ and silver. And produce 1+ ion and means it releases that 1 electron and it carry 1 positive charge on it and the valency will be 1. So किनकी valency 1 है? सोडियम की valency 1 है, पोटेशियम की valency 1 है and सिल्वर की valency 1 है. नेक्स्ट देखते हैं. So these are the valency. नेक्स्ट 2. तो 2 की वैलेंसी पहले मैग्नीशियम एंड तो मैग्नीशियम में कितना होगा? Mg+2 बिकॉज वैलेंसी इज 2 तो मैग्नीशियम का 2 हुआ. एंड देन जिंक का भी 2 होता है क्योंकि ये 2 कैटेगरी में लिखा जा रहा है. जिंक Zn+2 and calcium which is carry +2 charge and iron second it carry +2 charge and copper second it carry +2 charge. And these are the metals. They show valency of these. Sodium, potassium and silver, their valency will be 1. Magnesium, zinc, calcium, iron second, copper second, these have valences 2. And if we're talking about the another which will talking of another which will 3. किसकी वैल्यू होगी 3? सिंपल है. एल्यूमिनियम Al+3, copper 3, Cu+3. So these are the metals. They carry different charges. In case of these 3 metals, these three metals
यू हैव सीन, क्यों तो इनकी वैलेंसी सोडियम पोटेशियम सिल्वर की वैलेंसी 1 है, तो ऐसे 1 प्लस चार्ज कैरी करेंगे, मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन वन टाइम में डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं, लूज करते हैं। मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन सेकेंड, कॉपर सेकेंड, these are the metals which release the or lose their electron in 2. That's why they get 2 plus charge. Magnesium, zinc, calcium, iron second, copper second. Here is a valency. All of them, these 5 metals are plus 2 charge, means valency there is 2. And aluminum and copper third, they carry 3 valency because they release, they donate, they lose the 3 electrons at a time. So these are the names of ions which form cations in respect of valence shell. अगर उनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 चार्ज कैरी करेंगे, अगर उनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 चार्ज कैरी करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और तीसरे में एल्यूमिनियम है और आयरन है, सॉरी कॉपर मिस्टेक। तो एल्यूमिनियम 1 टाइम में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, आयरन एट ए टाइम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मींस इस वैलेंसी विल बी 3। एंड नाउ द नेक्स्ट विल बी द valency of non-metal, valency of non-metal, which is valency and name and symbol, which is the next is valency is 1. So first is hydrogen, which is H plus hydride, जब ये गेन कर लेगा हाइड्राइड H माइनस हो जाएगा, एंड क्लोरीन which is Cl minus, bromine which is Br minus, iodine which are I minus, and after that, and here is 2 valency which is oxide which is -2, और ऐसे भी लिख सकते हैं डबल माइनस या -2 लिख सकते हैं। सल्फर which is S double minus because they contain 2 minus electron या 2, they receive 2 electrons at a time, and the next is which is next is nitrite, and it carry 3 negative charge. So these are the some non-metals which all non-metals are formed or receive electrons. They carry negative charge. In case of hydrogen sometime form hydrogen ion, but it is still non-metal. ये non-metal है, फिर भी sometime ये positive charge करता है, positive carry करता है, sometime hydride ion means अगर हाइड्रोजन की बात करें ना तो it have 1 atomic number and 1 atomic mass. When तो इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसके 6 शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज इट हैव ओनली 1 एटॉमिक नंबर। ये कंप्लीट करने के लिए दूसरे से शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये किसी से शेयर करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, किसी का लोन कर लेता है तो इसमें हाइड्राइड आयन फॉर्म होता है, जो कि यहाँ आपको शो किया गया है। मींस the hydrogen, so the both
the category both the ions which is hydrogen ion which is cation, hydride ion which is anion. So most of cases these have seen as you seen in the case of acid. आप एसिड के केस में देखेंगे जब भी एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन, कोई भी एसिड है वो H+ आयन देगा। हाइड्राइड के केस में, हाइड्राइड उस केस में होता है जिस केस में इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। When the hydrogen need electron, it possesses negative charge. When it need the electron, this octet K is get completed, and that's why it carry hydride. That means it receive one electron. Here is it lose one electron. Chlorine. If you see the structure of chlorine, the 70. क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है 70 2 8 7 K L M N। तो K में कंप्लीट होता है, L में कंप्लीट होता है, M में 7 होता है। अगर एक मिल जाए तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। दैट्स व्हाई इट्स कैरी वन नेगेटिव चार्ज। सेम थिंग हैपनिंग इन केस ऑफ ब्रोमीन and it carry one negative charge. In case of chlorine, it carry one negative charge because it feel their outermost electron. It complete by gaining the one electron. That's why all the halogens are contain the one negative charge because they need one electron to their fulfill of their outermost cell electron. Now the next, the valency of two oxide. Oxide, in case of oxygen, it need the two electron. It need two electron. Let's see their atomic number. And this atomic number is atomic number of oxygen, which is atomic number of oxygen is 8. इसका अगर हम K L M N सेल में फिल करें तो K में कितना हो जाएगा 2, L में कितना हो जाएगा 6 plus 2 8। यहाँ पे होता है कंप्लीट फिल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तब यहाँ पे 1 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए तो इसका जो L सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट हैव नीड 2 इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर रिसीविंग 2 इलेक्ट्रॉन इट कैरी 2 नेगेटिव चार्ज। सल्फर के केस में होता है, सल्फर का होता है 60। सल्फर का होता है 60। सल्फर का एटॉमिक नंबर 60 होता है। लेट्स फिल द इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। तो 2 8 6 2 plus 8 10 plus 6 16। तो 16 कंप्लीट हो गया। अब इसको कितना चाहिए हाफ फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका जो M सेल है वो हाफ फिल हो जाएगा कंप्लीटली। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स नीड 2 इलेक्ट्रॉन। दैट इट्स आउटर वैलेंसी विल बी stormed at it have 2 negative charge, that was sulfur or sulfide बोलेंगे इसको। एंड नेक्स्ट लास्ट वन नॉन मेटल इज नाइट्राइट। नाइट्रोजन के केस में देखते हैं नाइट्रोजन को क्यों 3 की जरूरत होती है, बिकॉज नाइट्रोजन हैव 7 एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन हैव 7 एटॉमिक नंबर। लेट्स फिल करेगा K L M N। K लेवल में देखते हैं तो K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बचे 5, तो 5 यहां फिल हो जाते हैं। इसको कितना चाहिए आर यू नो अबाउट? K के लिए 2 चाहिए, इसके लिए 8, इसके लिए 16, इसके लिए 32। अब यहां नाइट्रोजन के केस में L सेल में ओनली 5 इलेक्ट्रॉन है। इनको कितना चाहिए मैक्सिमम कि इनका 8 हो जाए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो मींस इट नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मींस दैट्स व्हाई इट्स कैरी 3 नेगेटिव चार्जेस। नाउ द नेक्स्ट, द पॉलीएटॉमिक आयंस। द पॉलीएटॉमिक आयंस ये नेगेटिव आयंस है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बट ये दोनों केसेस शो करता है। मेटल का केस भी शो करता है, नॉन मेटल का भी शो करता है। मींस इट लूज आल्सो देयर इलेक्ट्रॉन एंड रिसीव वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट ऑफ K शेल। दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, कैटायन, हाइड्राइड आयन, एनायन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब सारे के सारे सॉरी आप समझ सकते हैं। क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन,
आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड. So these are the non-metal which they contain the negative charges, and we have this three valency, which is one valency of these chlorine, bromine, chlorine, chloride, hydride, chloride, bromine, iodide. These are the halogens which carry one negative charge. That's why called hydride. And two oxygen and sulfur, they will call oxide and sulfide. Nitrogen carry three negative charge, and valency will be 3, and that we call nitride. Now the next, polyatomic ions. So the polyatomic ions, which is ये polyatomic ions है, ammonium ions means it contain more than 4 electron और 4 atom. सिंबल क्या होगा अमोनियम का सिंबल होगा इसमें NH3, and it carry negative or negative, it carry positive charge, ammonium ion. Now the next, hydride ion, hydroxide ion, OH minus, nitrate ion, NO3 minus, hydrogen carbonate ion, HCO3 minus. Means these polyatomic ions carry only one positive charge and only 3 single negative charges on them. The next, two valency of the polyatomic, which is sulfide, and SO2 minus. So here is our dear friend, the polyatomic ions, which consist of metals, non-metals. These are the basically non-metals, oxide and non-metals compound. अमोनियम है, अमोनियम में 2 non-metals हैं जो कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है. And then hydroxide ion, which carry only one negative charge, nitrate ion only one negative charge, hydrogen carbonate ion only one negative charge. और दूसरी की जो वैलेंसी है कार्बोनेट आयन CO3 में 2 नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इनकी वैलेंसी 2 होगी. सल्फाइड आयन SO3, इनमें 2 वैलेंसी है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, मींस 2, एंड सल्फेट SO4 2 माइनस, phosphate PO4 3 minus, which is called the 3 valency of the phosphate. So in this way we have seen the symbol, constituents and valency from non-metal, metal and to the polyatomic ions. सबकी लगभग वैलेंसी हम देख चुके हैं. अब देखते हैं हाउ डू वी राइट द केमिकल फार्मूला. यही तो शुरू करते हैं. सपोज अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आपसे बोला गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड I'm writing the name like that. Magnesium हाइड्रोक्साइड. आपको दे दिया गया एग्जांपल कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला लिख के बताइए. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब ये कैसे लिखेंगे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पहले केस में आप पहले ऐसे कॉलम मैंने बनाया, उसमें बताया कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, मींस +2. और यहां पे देख रहे हैं मैग्नीशियम तो हमने लिख लिया, हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो यहां पे देखा कि हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1 होती है. तो यहां पे क्या लिखेंगे? +2, और यहां पे क्या लिखेंगे? -1. दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा. ये इलेक्ट्रॉन इनके पास जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इनके पास जाएगा.
इलेक्ट्रॉन इनके पास आएगा तो क्या होगा, MgOH का ये दो इलेक्ट्रॉन के पास गया, OH का वो उल्टा है। एंड अगर मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम हो तो कैल्शियम में डाई वैलेंट है, मैग्नीशियम में डाईवैलेंट है। अगर पोटेशियम की बात करें, कैल्शियम की देख लीजिए, कैल्शियम Ca+ ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड है, दो में +2 होगा -1 होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, इनको मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, इनको मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, +2 चार्ज मिलेगा इनको -1 चार्ज मिलेगा। तो कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, तो ये हुआ इसमें these are the category of these metals। अब दूसरे के केस में देखते हैं इस साइड में, अगर मान लीजिए कि कोई जो मेटल है वो ओनली वन मोनोवैलेंट है, उसमें एक ही वैलेंसी है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम की जगह पोटेशियम से किससे कंबाइन करवाया आपको, आपने हाइड्रोक्साइड आयन से, आपने हाइड्रोक्साइड आयन से किससे रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम से, दूसरी बार में कैल्शियम से करवाया। अब मैं यहां करवाने जा रहा हूं OH से, OH से किससे करेंगे, पोटेशियम। तो पोटेशियम कितना वैलेंट है, मोनोवैलेंट है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है और इनकी वैलेंसी 1 है, तो इनके पास +1 है और इनके पास -1 है। तो ये इलेक्ट्रॉन OH का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और K का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ। अब क्या बनेगा, KOH, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास था, कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, KOH। दिस इज अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस वे वी हैव एबल टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ये देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कार्बोनेट का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर कार्बोनेट डाईवैलेंट है और इसको सोडियम से लिखें तो सोडियम क्या है, मोनोवैलेंट है, सोडियम मोनोवैलेंट है, या फिर पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम मोनोवैलेंट है और कार्बोनेट आपका क्या है, डाईवैलेंट है। तो कार्बोनेट डाईवैलेंट है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करवाइए, -2, इनका लेंगे ये और ये, तो क्या हो जाएगा, K2CO3, K2CO3। तो हमारा जो सॉल्ट मिलेगा वो K2CO3 होगा। एंड इन दिस वे वी हैव टेक द हेल्प ऑफ दिस मेटेलिक अमाइन, नॉन मेटेलिक अमाइन।